Hello friends and welcome to Abhipedia. My name is Manish and in this video we will be discussing the multiple choice questions for the UPSC CAPF Assistant Commandant exam. So if you have not subscribed to the channel, do subscribe to the channel and hit the bell icon so that you receive the notifications of these videos as and when we post them. इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. We will be discussing questions on almost all the GS subjects starting today with polity. So we'll be discussing polity, geography, history and all other subjects of GS which are relevant for this exam. Let us start with the first question, but before that let me tell you that Abhipedia is launching the UPSC CAPF Assistant Commandant 2023 complete course for paper 1 and 2. और इसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है सो डू पिंग ऑन द नंबर 7837773651. This is the number on which you should reach if you want to have any inquiry or if you want to join the course. 7837773651. So we provide complete solution for your entire needs for covering this particular exam. All right, let's get started with the question number 1. Which among the following is not necessarily a feature of the parliamentary form of government? इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है कि parliamentary form of government का feature हो? First, elected head of state. Second, majority party rule. Third, nominal and real executives, and fourth, collective responsibility of the executive to the legislature. इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको देखने के दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि आप इन चारों में से उस एक चीज़ को ढूंढें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का फीचर नहीं भी होगा तो चलेगा. हो सकता है चारों फीचर्स हों लेकिन नॉट नेसेसरीली, अगर नहीं भी होगा तो चल जाएगा काम. स्टिल दैट विल बी अ वैलिड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. But another way of looking at this question is that you see which are the essential features of parliamentary form of government. कि उनके बिना parliamentary form of government बन ही नहीं सकती है. Now what is a parliamentary form of government? Where the people are ruled through their representatives. जहाँ पे लोग अपने representatives को चुनते हैं और उनके थ्रू खुद पे रूल करते हैं. That is called a parliamentary form of government. तो ऐसी parliamentary form of government में मेजॉरिटी पार्टी का रूल होना क्या ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू खुद को चला रूल किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो ही गवर्नमेंट बनेगी. सो दिस इज़ एन एसेंशियल रूल. यानी कि दुनिया के जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं दे आर ऑल मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट्स. क्या यहाँ पर एक नॉमिनल और एक रियल एग्जीक्यूटिव का होना ज़रूरी है? Just like in India, we have president as the nominal executive and prime minister as the real executive. ये ज़रूरी है क्योंकि real executive के पास in reality सारी powers होती हैं, जबकि nominal executive का काम है to keep a check on the real executive and to see whether the constitution is being followed or not. तो ये भी correct option है. यानी कि एक ही executive में जब दोनों चीज़ें होती हैं that is not a parliamentary form of government. अगर nominal और real दोनों की power एक ही अथॉरिटी में वेस्ट कर दी जाए तो इट बिकम्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसए में है. बट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव सेपरेट नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स. देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर हु मेक्स द लॉज. So executive is drawn from the legislature. जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं they are all executive, but they are drawn from the legislature. They are either the members of राज्यसभा और लोकसभा. तो अगर ये यहाँ से ही ड्रॉ हुए हैं so they are responsible to the legislature as well, collectively responsible to the legislature. यानी कि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सब कलेक्टिवली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो ये भी एक एसेंशियल फीचर है. जब तक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है. पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल. इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट.
अगर हम दो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को कंपेयर करें, वन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ ब्रिटेन, बोथ आर पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्टेड होते हैं, हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट स्टिल इज इलेक्टेड। ब्रिटेन में head of the state is the queen right now, so she is not elected, she is a hereditary office. So queen or king of England is a hereditary office, लेकिन still वो एक parliamentary form of government है। तो इसका मतलब elected head of state होगा तो भी parliamentary form of government हो सकती है, नहीं होगा तो भी parliamentary form of government हो सकती है। It is not an essential feature, so to say. Hence elected head of state is our answer. It is not necessarily a feature of parliamentary form of government. हो सकता है जैसे इंडिया में elected head है, लेकिन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। Britain does not have an elected head of state. Still it is a parliamentary form of government. So A is not necessarily a feature of the parliamentary form of government. तो conceptual clarity जब तक आपको नहीं होगी, it's difficult to solve MCQs in UPSC exams, especially the IAS, CAPF, CDS level of exams. You need conceptual clarity because the questions that you get asked are not necessarily of factual nature. They can be of conceptual nature as well, just like you saw. Consider the following statements, a typical UPSC type question. Consider the following statements, और इसमें आपको correct statement बतानी है. First, the conduct of all elections to the panchayats is vested in the Election Commission of India. ये गलत statement है. It is not Election Commission of India, it is the State Election Commission that conducts elections to the panchayat. Election Commission of India सिर्फ 6 elections conduct कराती है. President, Vice President, राज्य सभा, लोक सभा, Legislative Council and Legislative Assembly. These 6 elections are conducted by the Election Commission of India. उसके बाद जो local body elections हैं, चाहे वो पंचायती राज institutions के हों under the 73rd Amendment, चाहे वो urban local bodies के हों under the 74th Amendment, they are conducted by the State Election Commission of the respective states. तो यहाँ पे Election Commission of India की वजह से ये statement गलत है. Second, the state election commissioner is appointed by the governor of the state. ये बिल्कुल सही है statement. हर state election commissioner को उस state का governor appoint करता है. Third, the state election commission is subordinate to the election commission of India and presents its annual report to the commission. ये statement भी गलत है क्योंकि election commission of India एक अलग body है, state election commission एक अलग body है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करती है. सो दे आर नॉट ऑर्गेनिकली लिंक्ड. अलग अलग तरह के इलेक्शंस इन्होंने कंडक्ट कराने होते हैं, सो दे आर नॉट एक्चुअली लिंक्ड. तो इसमें सही स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी 2 ओनली. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के कॉम्पोजिशन, फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज और उनका रोल सेपरेटली क्लियर होना चाहिए. Question number 3. Which of the following historical commissions were related with the issue of state reorganization in India? इनमें से कौन कौन सी कमीशंस थी जिनका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई डायरेक्ट लिंक है? ए. फजल अली कमीशन, जीवीपी कमेटी, धर कमीशन, राजीव कमीशन और गोखले कमेटी. सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है. Now first you look at the options. अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो सभी में मैक्सिमम 3 ऑप्शंस दी हुई हैं. इसका मतलब अब आप इन पांचों चॉइसेस को इस तरह से अप्रोच करेंगे कि इनमें से 3 ही आंसर हो सकती हैं, यानी कि 2 डेफिनेटली नहीं है. राइट? तो नाउ द इजियर ऑप्शन जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए इज द फजल अली कमीशन. फजल अली कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. सो आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर. उसके बाद जेवीपी कमिटी वॉज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया. पत्ताभी सीतारमैया, JVP committee. So this also was constituted for states reorganization. बेसिकली पहले जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट लोगों को पसंद नहीं आई. पीपल डिड नॉट एग्री
कि हमें लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं दी जा रही, सो कोई अथॉरिटेटिव जो वॉइस है वो उसको कहती तो लोग ज़्यादा बिलीव करते, इसीलिए जेवीपी कमेटी बिठाई गई एंड ऑल दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली रिगार्डेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। 1948 में ये कमीशन बिठाई गई थी और इसका पर्पस था कि अगर लोग इनके मुंह से सुनेंगे कि हाँ अभी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, देन दे विल बी पैसिफाइड बिकॉज दे वर अथॉरिटेटिव कैरिज्मेटिक लीडर्स। देन केम द धर कमीशन, इसने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स दिए। सो बेसिकली द फर्स्ट थ्री commissions are related to states reorganization, hence the answer is A 1, 2 and 3 only. Rajiv Commission or Gokhale Committee not related to states reorganization, right? So here you have the detail of how all these committees were there. तो सबसे पहले एसके धर कमीशन बिठाई गई, उसको रिव्यू करने के लिए जेवीपी कमेटी बिठाई गई और फाइनली फजल अली कमेटी बिठाई गई जिसे हम कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, और इसकी रिपोर्ट आई 1955 में, जिसको इंप्लीमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 नई स्टेट्स और 6 नई यूनियन टेरिटरीज एस्टैब्लिश की। सो एसके धर कमीशन, जेवीपी कमिटी एंड फजल अली कमीशन आर द थ्री दैट वर रिलेटेड टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। Question number 4. Now this is a straightforward factual question, but it does require a bit of, I won't say cramming. It is expected of you to memorize at least the preamble of India, preamble to the Indian Constitution. So इसमें कुछ नहीं है, simply the order of the keywords in the preamble. Choose the correct order as written in the preamble. So इन पांचों words का order जो है वो shuffle किया गया है. You just have to see कि उसका order क्या है. The correct answer is C, Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. Sovereign Socialist Secular Democratic Republic, right? तो इसको अभी याद करने का कोई तरीका as such नहीं है. It's just that you have to remember it. Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. Right, so this is the preamble to the Constitution. It's like an introduction to the Constitution which gives a summary of what the entire Constitution stands for. The source of authority, the people of India, the kind of state we are, sovereign, socialist, secular, democratic republic, the objectives we want to achieve, justice, liberty, equality and fraternity, and the date on which we adopted and enacted it, 26th of day of November 1949. ये चारों इसके main ingredients हैं. Question number 5 from fundamental rights. Article 15 of the Constitution enables the state for making special provisions for which of the following categories of citizens? Article 15, which talks about equality in educational institutions and in places of public importance. इनमें स्पेशल प्रोविजन किन किन के लिए अवेलेबल है, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किन सेक्शंस के लिए कुछ अलग से कर सकती है. व्हाट आर दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल फॉर? Women and children, scheduled caste and scheduled tribes, economically weaker sections. So you have to choose the correct option. इनमें से किन किन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्रोविजंस या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की हुई हैं? सी, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन, यू नो, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो टू से, कि किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, हर जगह सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. लेकिन उसमें कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जा सकती हैं. विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाई जा सकती हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बनाई जा सकती हैं. एंड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, by 103rd Constitutional Amendment Act, even EWS, economically weaker sections, can also be granted special provisions like reservation in such institutions. So all three is your correct answer, all of the above. और इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को amend किया गया है and provisions have been added. As you can see, 15 clause 3 is an exception for women and children, 15 clause 4 is for scheduled caste and scheduled tribe, and 15 clause 6 सब clause A ये वाला है जो 103rd amendment से लेटेस्ट ऐड किया गया है. Nothing in this article shall prevent state from making any special provision for the advancement of economically weaker sections of citizen. और इसी वजह से
अब 10% रिजर्वेशन है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. Next, with reference to the constitution, consider the following. Now, this is a bit of an application based question. Fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. Question है, which of the above provisions of the constitution are fulfilled by Swachh Bharat Abhiyan launched by the government of India? स्वच्छ भारत अभियान इनमें से किन किन provisions को fulfill करता है? अब स्वच्छ भारत अभियान में क्या है? Open defecation free, sanitation, public health, ये सारी प्रोविजंस किन किन पार्ट्स को सेटिस्फाई करती हैं? क्या किसी फंडामेंटल राइट को सेटिस्फाई करती हैं, किसी ड्यूटी को या किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को? एंड यू हैव टू चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली. पहले हम इसकी प्रोविजंस देखते हैं, देन वी विल चेक द आंसर. अगर हम स्वच्छ भारत अभियान को फंडामेंटल राइट से जोड़कर देखें, आर्टिकल 21 which is the most liberally interpreted article in the constitution says that clean environment is implicit under right to life. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, जिसे कोर्ट्स ने आज तक की सबसे ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दी है, और उसमें राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी एक है. तो अगर हम ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बना रहे हैं, सो दैट मीन्स आर्टिकल 21 इससे फुलफिल होता है. सो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर सेटिस्फाइड बाय स्वच्छ भारत अभियान. नेक्स्ट, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें, आर्टिकल 47 सेज डायरेक्ट्स द स्टेट to improve public health and raise the standard of living. Public health इससे improve होती है स्वच्छ भारत अभियान से. Disposal of waste, sewage treatment plants, construction of latrines, prohibition on dry waste and open defecation free, ये सारी चीज़ें public health को improve करती हैं. That means directive principle of state policy भी एक ऐसा है जो स्वच्छ भारत अभियान से fulfill होता है. Now, if we talk about fundamental duty, denouncing practices derogatory to the dignity of women and improving the environment, which is a fundamental duty under Article 51A subclause E. It's a fundamental duty of every citizen to denounce the practices which are derogatory to the dignity of women. Now, open defecation, especially in rural areas, is a blot on the dignity of women. So, अगर इसको हम रोक रहे हैं, that means we are fulfilling a fundamental duty. And also improving the environment is a fundamental duty of every citizen. Hence fundamental duties are also satisfied. तो स्वच्छ भारत अभियान इन तीनों पे किसी ना किसी तरह से indirectly या let's say directly fulfill करता है. Hence the answer is D, 1, 2 and 3. See, this is the type of question that is going to require a lot of application of mind. इट इज़ नॉट सिंपली कि आपको करंट अफेयर्स में आपने स्वच्छ भारत अभियान पढ़ लिया और अलग से आपने पॉलिटी में ये सारी चीज़ें पढ़ ली. व्हेन यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, दिस इज दैट टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, दैट इज द हाइट ऑफ योर प्रिपरेशन. आई वुड टेल यू, इफ यू आर एबल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. और ये आप कब कर पाओगे? जब आपको इन सब की प्रॉपर नॉलेज होगी. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को जब आप पढ़ते हैं, try to apply it on all these three parts, part 3, part 4 and part 4A. तो इसके लिए आपको पहले ये सारे याद होने चाहिए. and this is a really I would say low hanging fruit that you should have. पॉलिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम याद कर लें. दीज आर द आर्टिकल्स दैट यू शुड रिमेंबर. इसके अलावा कोई आर्टिकल आपको ऐसा याद नहीं करना होता, पूरे पूरे पार्ट्स आपको याद नहीं करने होते. बट दीज 3 पार्ट्स आर रेलिवेंट नॉट ओनली फ्रॉम योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर कभी आपको सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने होते हैं, दीज हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. The President can return a constitutional amendment bill for reconsideration of Parliament. अब यहाँ पे सीधा सीधा President से question है. The President can return a constitutional amendment bill for reconsideration of Parliament. ये statement गलत है. पहला ऐसे possible होता था, लेकिन 24th Amendment के बाद it is binding upon the President to give consent to a constitutional amendment bill. तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन. 2 तरह के बिल्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते. एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और दूसरा मनी बिल. ये दोनों बिल्स
प्रेसिडेंट को साइन करने मैंडेटरी होते हैं, हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में अलग अलग चाहिए होती है, सेपरेटली चाहिए होती है, इसलिए जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कंसिडर हो सकता है, ना ही मनी बिल कंसिडर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल है जो कि जॉइंट सिटिंग में कंसिडर हो सकता है। Third, a constitution amendment bill related to the federal structure of India must be first introduced in the Council of States. अगर फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी फीचर चेंज हो रहा है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड कोई चेंज आने वाला है, तो पहले उसे राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डज नॉट मैटर वेदर इट्स चेंजिंग द फेडरल प्रोविजंस और नॉट। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। अगेन योर फंडामेंटल्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत सीधा सा क्वेश्चन नहीं है, विच इज हाउ यूपीएससी पेपर्स आर। दे want you to apply your mind and not only to to cram something. Next, match the following. So this is from the legislature. 4 आपको टर्म्स दी गई हैं और 5 उसके सामने उनके मीनिंग्स हैं, एंड यू हैव टू जस्ट मैच देम। डिवीजन, गिलोटीन, मोशन एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर। डिवीजन होता है जब किसी मुद्दे पे पार्लियामेंट में एक राय ना बन रही हो तो वोट्स को डिवाइड कराना पड़े, दैट इज डिवीजन। गिलोटीन का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन चल रही हो और आप उस पर कट मोशन लगाओ या क्लोजर मोशन लगाओ, सो इट्स गिलोटीन क्लोजर, यानी कि सारी बातों को एक साथ क्लब करके उस पर वोटिंग करा दी जाए, दैट इज गिलोटीन क्लोजर। मोशन होता है किसी भी चीज को, हाउस को कोई भी एक्शन लेने के लिए जब प्रॉम्प्ट किया जाता है तो एक मोशन मूव किया जाता है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है जब आपको पता चले कि हाउस में किसी पर्टिकुलर रूल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई रूल वायलेट हो रहा है, मे बी ऑन डिबेट, मे बी ऑन वोटिंग, मे बी ऑन डिस्कशन, एनीथिंग, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हो, यानी कि एन एमपी कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो देखते हैं इन चारों का मतलब क्या है। गिलोटीन का मतलब होता है ब्रिंगिंग द डिबेट टू अ क्लोज। सो गिलोटीन इज guillotine is actually concluding the discussion on demand for grants. Yes, guillotine closure इसके लिए यूज होता है। So B का हो गया 4. Then A is division. Division is mode of arriving at a decision, जिसमें कि voting होती है। So किसी चीज पे बहुत देर से डिस्कशन चल रही है लेकिन उस पर डिसीजन नहीं आ पा रहा है। So when you ask for division, you ask the house to vote on a specific thing. So it is a mode of arriving at a decision. Then you have motion. So motion is, okay, first let's see point of order. So point of order is relating to interpretation or enforcement of the rules of procedure or constitution. So D का आपका हो गया 3. Then motion is a formal proposal made by a member. So this is what it is. So the answer is 5, 4, 2, 3. C is the correct answer. So this is how you need to solve it. Right? Then next, question number 9. Which among the following bodies embody the principle of cooperative federalism in working? Again, a question that requires application of what knowledge you have acquired. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जीएसटी काउंसिल या नीति आयोग। अब देखो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर सारा फोकस है, यानी कि आपको इन तीनों बॉडीज की कॉम्पोजिशन पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं, सेम जीएसटी काउंसिल, सेम नीति आयोग, अगर आपको ये नहीं पता है देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। या फिर अगर आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब नहीं पता, इवन देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन।
सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन इन तीनों में से कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कि अपनी फंक्शनिंग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट करती हैं। ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों रिप्रेजेंटेड हैं और दोनों मिलकर डिसीजन लेती हैं। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस यूनियन गवर्नमेंट, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि इसमें फेडरलिज्म जैसा कुछ नहीं है। द स्टेट्स डू नॉट हैव अ रोल इन इंप्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस एंड देन यू नीड टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर प्लस ऑल द स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर्स आर देयर। तो इसमें यूनियन और स्टेट्स दोनों आती हैं और जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन जो है वो 3/4 वोट से होता है और इसमें 1/3 वेटेज जो है वो यूनियन की है और 2/3 वोट वेटेज जो है वो स्टेट्स की है। इसका मतलब जब तक यूनियन और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स नहीं चाहते तब तक कोई डिसीजन नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सबको मिलके काम करना पड़ता है। सो जीएसटी काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन आता है नीति आयोग। नाउ नीति आयोग इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट हैज द चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूटीज। सो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। दैट मीन्स नीति आयोग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 and 3 ओनली। सो द क्वेश्चंस दैट यू गेट इन दिस लेवल ऑफ एग्जाम आर नॉट सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि आपको पूछ लिया जाए कि बताओ इसका आंसर ए है या बी है, या स्ट्रेटली लेट्स से दैट हु एडमिनिस्टर्स वोट्स टू द प्रेसिडेंट, you know, not that simple. It requires you to apply the knowledge that you already have. So you have, let's say आपने अलग से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ा, अलग से जीएसटी काउंसिल पढ़ा या अलग से नीति आयोग पढ़ा, दैट्स फाइन। और आपको ये भी पता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। आपके कॉन्सेप्ट माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग जो है वो पड़े हैं। When you read this question, you have to apply all of those points at one point. अब आपको देखना है अप्लाई करके कि ओके मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। नाउ यू हैव टू एक्चुअली चेक एंड देन यू हैव टू टिक एंड यू हैव टू क्रॉस, तब आप आंसर पे पहुंचोगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम्ड बाय यूपीएससी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड ऑफ दिस नेचर। Finally, the last question, which of these characterizes judicial overreach as different from judicial activism or judicial review? Again, beautiful question, another beautiful question that needs you to know the fine difference between judicial overreach, judicial activism and judicial review. See, judicial review तो एक पावर है जो जुडिशरी को दी गई है कि कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट बनाती है उसे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि जुडिशरी एक स्टेप आगे जा रही है जुडिशियल रिव्यू से और वो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को एज एन एक्टिविस्ट अप्रोच कर रही है। जैसे कभी कहीं भी कोई एट्रॉसिटी हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है, द जुडिशरी एक्ट्स ऑन इट, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी टेकिंग इनिशिएटिव ऑन समथिंग। एंड देन देयर इज जुडिशियल ओवररीच। इसका थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि जुडिशरी को जो काम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया है, दैट इज टू कीप अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे एक स्टेप आगे जा रही है जुडिशरी और इट इज एनक्रोचिंग इनटू द डोमेन्स ऑफ आइदर द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। यानी कि या तो जुडिशरी लॉ बनाने लग जाए या लॉ को इंप्लीमेंट करने लग जाए, दैट इज जुडिशियल ओवररीच। नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक criteria to measure what is overreach, what is review and what is activism, but in general parlance there is a very fine difference between the three. So let's see कि इन तीनों में से कौन कौन सी statements हैं जो judicial overreach को characterize करती हैं। Transgression of judiciary into executive or legislative domain, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब judiciary दूसरे domains में interfere करे, that is judicial overreach. So this is correct. This is judicial overreach actually. Second, judiciary passing orders to the executive on a matter of public importance. ये एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म की। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट इंस्ट्रक्ट कर रही है एग्जीक्यूटिव को कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको ये काम करना है। थर्ड, जुडिशरी नलिफाइंग अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वाज पास्ड बाय ड्यू प्रोसीजर।
पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी लॉ जुडिशरी के सामने रिव्यू होने के लिए गया और जुडिशरी ने उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. दिस इज जुडिशियल रिव्यू. दिस इज जुडिशियल रिव्यू. तो यानी कि आंसर है आपका ए. सो ए इज एन एग्जाम्पल और द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल ओवररीच, बी इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सी इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. राइट, तो आपको ये क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो अगेन आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट डिटेल in case you missed it the first time. 78377 73651. You can reach this particular number to register for the course. That is all for this session. Thank you so much and take care.